बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सब बोलो जोर से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Shri Radhe Jaya Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Gauranitai Shri Gauranitai Jaya Gauranitai Shri Jaya Gauranitai Shri Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya 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 Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol
हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हाँ उसको खोल दो थोड़ा सा। हाँ हाँ श्योर थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ कोई जरूरत। तो अभी पिछली क्लास में आप में से कौन कौन आया था पिछली क्लास में पिछले संडे को? अच्छा मैक्सिमम लोग आए थे। तो हमारा भगवत गीता का प्रभु जी ने लिया था 30 तक, सेकंड अध्याय का 30 तक हुआ था। तो आज मैं 31 से लूँगा। तो पहले थोड़ा सा एक मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी काम करने से पहले गुरु को याद करना होता है, क्योंकि बिना गुरु के तो कोई ज्ञान आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप सोचो मैं बोल रहा हूँ तो भूल जाना, मैं नहीं बोल रहा, ये गुरु यहाँ पे बैठते हैं, इसको बोलते हैं व्यास आसन। तो गुरु ऊपर से करते हैं, हम पोस्टमैन की तरह आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारे को कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु को आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे बोल सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सैगल ललिता श्री विशाखान। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। नमो शुद्धाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी नामे प्रभुदस्य काश्मीर प्रचार। तो अध्याय 2 का हम 31 लेंगे। पहले कोशिश करेंगे 3-4 कवर करने की, और बट ये रहेगा आपको समझ में आना। किसी को कोई डाउट हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है बीच में, क्योंकि रिदम टूट जाता है। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा फिर उसका अनुवाद पढ़ूंगा, आप सुन सकते हैं पहले। स्वधर्म अपि चा अविवेक्षा न विकम्पन्तु अहरिष्या धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेया
अन्यत् श्रुति यस न विद्यते। इसका मतलब लिखा है क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार सुन लो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ कंसंट्रेट कर सकते हैं, मैं रुक रुक के बोलूँगा। क्षत्रिय होने के नाते किसको बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को ना क्षत्रिय है। ठीक है, वैसे तो भगवान भी क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, द्वारका में तो वो क्षत्रिय के रोल में ही है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कहते हैं कि बेसिकली 4 वर्ण आश्रम होते हैं। पता है आप में से किसी को 4 वर्ण आश्रम? यस, पता है। हाँ, तो 4 वर्ण आश्रम होते हैं। सबसे ऊपर होता है ब्राह्मण, वो भगवान का सर माना जाता है, क्योंकि अगर दिमाग ही नहीं है तो पूरी बॉडी बेकार हो जाती है ना। दिमाग ही तो पूरी बॉडी को चला रहा होता है, पता है ना आप सबको इस चीज़ का। तो ब्राह्मण बेसिकली ये रहा, तभी बोलते हैं ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण जात से नहीं होता। हम लोग क्या सीखते हैं? जात से ब्राह्मण है, जात से क्षत्रिय है, जात से शूद्र है। जात से क्या हुआ? अगर एक ब्राह्मण नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, तो वो ब्राह्मण है? वो नहीं है ब्राह्मण भैया। और एक शूद्र है, वो भगवान को नित्य भोग लगाता है, भगवान की आराधना करता है, कभी शराब नहीं पी, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी जुआ नहीं खाया, सबका आदर करता है, सब में दया का भाव है, तो वो ब्राह्मण वाले कार्य कर रहा है। तो भगवान यही बोलते हैं कि वर्ण आश्रम का मतलब क्या हो गया? ये 4, लेकिन कर्मों के अनुसार। अब एक बात बताओ, क्या जितने शर्मा आज की डेट में, जितने शर्मा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी जो भी हैं, ये तो पंडित हुए, तो क्या वो सोल्जर नहीं बनते होंगे आर्मी में, एयरफोर्स में भी जाते होंगे? तो वो क्षत्रिय वाला कार्य कर रहे हैं, तो वो क्षत्रिय हो गए। हाँ, लेकिन अगर वो ब्राह्मण वाले कार्य भी कर रहा है तो ब्राह्मण भी है। आई बात समझ में सबको? तो आगे क्या लिख रहे हैं कि तुम्हारे लिए धर्म क्या है? अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अर्जुन क्यों संकोच कर रहे थे? मेरे चाचा खड़े हैं, मेरे मामा खड़े हैं, मेरे ताए खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मैं उनको कैसे मार दूं? जैसे मैंने हर बार अपने शुरू के लेक्चर्स में बोला कि आपके मदर फादर अगर कोई गलती करें, है ना, और धर्म के अनुसार ना हो, तो आप उनके मुंह पे थप्पड़ मार दोगे क्या? बताओ प्रभु जी आप। लास्ट, अगर आपके मम्मी पापा कोई गलती करें जो धर्म के अनुसार ना हो, तो आप क्या उनको थप्पड़ मार दोगे? नहीं मारोगे ना, कभी भी नहीं मारोगे। जब हम थप्पड़ नहीं मार सकते तो चाकू छुरी तो मार ही नहीं सकते। तो अर्जुन को यही तो प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई ठीक है उन्होंने गलत किया, लेकिन मैं जान से कैसे मार दूँ? घर वाले खड़े थे और गुरु खड़े थे जिनकी वो बचपन से रिस्पेक्ट करता था, और वो भी उसकी रिस्पेक्ट। भीष्मपितामह, उन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो तो हमेशा कह रहे थे कौरवों को कि भाई तुम गलत कर रहे हो, वो तो उनके साइड थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए उन्होंने कौरवों का साथ देना पड़ा। तो वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मार दो। अर्जुन कह रहे मैं नहीं मार सकता, मैं सारा राज्य छोड़ देता हूँ, मैं भीख मांग के खा लूँगा। तो यही स्थिति तो हमारी भी होती है कि अगर हमारे को कोई बोल दे कि माँ बाप को मार दो जान से, वो कहेंगे मतलब ही नहीं होता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि यहाँ हर परिस्थिति में ना सिचुएशन के हिसाब से आंसर अलग अलग होता है। इस सिचुएशन के अंदर आंसर देते हैं। जैसे पिछली क्लास में हुआ था आत्मा के बारे में, आप आए थे माता जी पिछली क्लास में? मैं भी नहीं था पिछली क्लास में वैसे तो आत्मा के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा। आत्मा ना तो मरती है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना घुलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा खुला रहने दो माता जी, खुला रहने दो थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है। उसे पता नहीं चलता लोगों को ना आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, तो ये जो शरीर है वो तो कपड़ा है। तो अब 50, 60, 70 साल के लिए कपड़ा पहना। अब जैसे ये कुर्ता अगर फट जाएगा तो मैं इसके लिए रोऊंगा थोड़ा ना ज़िंदगी भर, मैं इस कुर्ते को फेंक दूंगा, नया ले लूँगा, ऐसे ही होगा। तो जब शरीर को ख़त्म कर देते हैं
तो फिर क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? क्योंकि आत्मा के बारे में नहीं पता। तो भगवान अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आत्मा के स्तर पे सोचो। अगर भीष्म पितामह को तुमने मार दिया, और भगवान अपना वो विराट रूप भी दिखाते हैं, उसमें पहले दिखा देते हैं कि सब मरे हुए हैं, तुम नहीं भी मारो तो मरे हुए हैं, मैंने मार रखा है सबको। क्योंकि भगवान के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तुम्हारे को कर्तव्य का साथ देना। क्यों? क्योंकि धर्म के अगेंस्ट वो खड़े हैं। अभी जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप इंडियन आर्मी में, अभी समझ जाओगे आप, ठीक है। आप 19 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में आपने एनडीए का पेपर क्लियर कर लिया, आप लेफ्टिनेंट बन गए, आपकी पोस्टिंग लग गई कश्मीर में। होगा पॉसिबल? होता है ना, 100%। यानी कि आप 19 साल के हो, तो यानी कि आपके फादर 40-42 साल के हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपके पैदा होने के बाद 2-4-5 साल के बाद वो घर परिवार छोड़कर पाकिस्तान में सेटल हो गए। समझ में आया ना? एक आदमी है जो घर परिवार छोड़ के पाकिस्तान में सेटल हो गया और वहाँ की आर्मी में चला गया। समझ में आ गया? लेकिन उसकी माँ यही रही, उसने कहा मेरे को इंडिया नहीं छोड़ना। उसका बच्चा बड़ा हुआ, वह इंडियन आर्मी में हुआ, फादर उसके पाकिस्तान आर्मी में थे। दोनों आमने सामने हैं, दोनों को पता भी है, फ़ोटो भी है, फ़ोन पे कभी कभी बात भी जाती है, और पता भी है लड़ाई में वो भी खड़े हैं, उसी फ्रंट पे हैं, उसी बटालियन में, उनको ही पता है। क्या बेटा मारेगा नहीं गोली? क्या मारेगा? और फादर छोड़ देगा क्या बेटे को? धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, मानना पड़ेगा। तो यही तो बोल रहे हैं भगवान कि वो कौरवों की सेना में है और आप पांडवों की सेना में हो, वो अधर्म कर रहे हैं, आप धर्म के साथ हो, तो क्यों नहीं मारोगे? अब बात समझ में आई? लेकिन अभी मैंने पहले किस एंगल से बताया था, तो आप ना बोल रहे थे कि माता पिता को थप्पड़ नहीं मारेंगे, भीख मांग लेंगे, नहीं मारेंगे, अभी हम गोली मार देंगे। यस, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसीलिए जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, तो बाहर वाले हमारे दिमाग को ऐसे घुमा देते हैं, वो परिस्थिति कुछ और क्रिएट कर देते हैं। हम कहते हैं बात तो सही कह रहा है, क्योंकि दूसरी परिस्थिति हमने पढ़ी नहीं। तो भी पढ़ो, सही है ना? तो क्लियर कट यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है अनुवाद में? भगवत गीता में सारे आंसर्स हैं हमारी लाइफ के जीने के, सारे। लेकिन डिपेंड करता है हम समझते कैसे उसको। हम कई बार उसको उल्टा समझ लेते हैं, उसको सही तरीके से समझना है। कैसे समझ में आएगी भगवत गीता? नए वक्त बताओ, भगवत गीता कैसे समझ में आ सकती है? खुद पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। हाँ, बोनाफाइड गुरु यानी कि किसी के निरीक्षण में पढ़ोगे ना। पढ़ना अच्छी बात है, फिर डाउट्स पूछो। इसका मतलब हो रहा है आप उस पर आत्म मंथन कर रहे हो, मनन कर रहे हो कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तभी तो एक बच्चे को बोला जाता है टीचर की ज़रूरत होती है। नहीं तो माँ बाप बोलेंगे यार नर्सरी केजी में पढ़ाने में क्या, मैं ही पढ़ा देती हूँ, उसमें स्कूल भेजने की क्या है, पढ़ाने क्या है, ए फॉर एप्पल ही तो पढ़ाना है, मैं ही पढ़ा देती हूँ। लेकिन जो टीचर होगा वो एक मार्गदर्शन अलग तरीके से देगा, घर पे वो माहौल नहीं होगा। सेम ऐसे ही होता है। और मैं हमेशा हर लेक्चर के लिए बोलता हूँ, जब बचपन से लेकर आज तक 20, 25, 30 साल तक हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, इंस्टीट्यूशन में गए, ट्यूशन लगाई, सब एक इन चीज़ों के लिए कोई पढ़ाई नहीं है क्या? इसको हम ग्रांटेड लेके चलते हैं कि इसके लिए क्या बनना है, ये तो सब पता ही है मेरे को, भगवान कौन है सब पता है मेरे को, बच्चे बच्चे को पता है। इसीलिए हम अपने धर्म को नहीं जान पाते, इसलिए हम धर्म की डेफिनेशन भी नहीं जानते। आगे सुनो, तो भगवान क्या कहते हैं? अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अनुवाद, सॉरी तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है उसकी एक्सप्लेनेशन। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। तो पहला वर्ण क्या होता है? ब्राह्मण। द्वितीय क्या होता है? तो उन्होंने क्या बोला? द्वितीय यानी कि क्षत्रिय किसके लिए? शासन के लिए है। अब अगर राज्य संभालना है, अब अगर आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, कोई भी हो, अगर मोदी हाथ जोड़ के खड़ा रहे सबके सामने, हाँ देख लेते हैं कोई बात नहीं, अच्छा 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 अच्छा, तो देश चल लिया। ऐसे थोड़ा ना चलेगा देश। जो क्षत्रिय स्वभाव रखना ही पड़ेगा। पाकिस्तान उंगली दिखाएगा तो भैया पहले प्यार से बात कर, तो अगली बार तो फिर उंगली का जवाब देना ही पड़ेगा। चाइना प्यार से बात करेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर राज्य, ये लिखा है देखो,
उत्तम शासन के लिए क्षत्रिय होना ज़रूरी, तभी तो फिर हमारी बटालियंस को आर्मी एयरफोर्स लगाने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो प्यार ही कर लो। पर उत्तम शासन के लिए चाहिए ये। और क्षत्रिय कहलाता है, शत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वो क्या है, क्षत्रिय। अब हमारी कंट्री पे कोई अटैक करेगा, माता जी वो पेज नंबर आपका तो अलग होगा, मेरा अलग है, पर ऊपर ना हर पेज के ऊपर लिखा होता है अध्याय का नाम, अध्याय 2 लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 31, हर अध्याय के ऊपर लिखा होता है। दिखा आपको? हर पेज के ऊपर लिखा होता है अध्याय। अध्याय 2 चैप्टर 2 31 मिल गया माता जी? पता चल गया ना तरीका? ठीक। तो ये क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों? अब वो जिंदा आदमियों को तो मारेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग तो चाहिए, तो उनको सिर्फ शिकार करने की परमिशन थी उस टाइम पे, आज के टाइम पे नहीं है। क्योंकि वो शेर का शिकार करते थे या ऐसे जानवरों का शिकार करते थे, कमज़ोर जानवरों का शिकार नहीं करते थे, या ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जो उनको शासन चलाने के लिए मदद करेगा। जैसे कोई ऐसा जानवर है जिसको मारना बहुत कठिन है, उसका शिकार करेंगे, या ऐसा जानवर है जो बहुत तेज़ भागता, पकड़ में नहीं आता, उनको देखना है कि किस तरह से शूट कर सके। क्योंकि पहले के ज़माने में तो क्या होता था, तीर कमान और तलवार ही होती थी, ऐसे तो होता नहीं था आपके मशीन गन एटसेट्रा। तो ये था। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसमें आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। वो हमें जिंदगी किसी की बात में नहीं बैठे इनके गांव में किसी बात नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। बात समझ में आ रही है? तो क्षत्रिय वाला धर्म निभाता था, आमने सामने तलवार से, यानी कि शेर झपट्टा मारेगा और वो तलवार से लड़ेगा, डरेगा नहीं। आजकल तो दूर से मचान बना दी जाती है, मचान से गोली मार दी जाती है, शेर का शिकार किया जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने भी जाना है आज? अच्छा, वो वही खिचड़ी वाली में? अच्छा, वही उधर खिचड़ी जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे। शेर की मृत्यु होने पर राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। अगर शेर मर गया तो मारना ही है क्षत्रिय ने, तो उसकी क्या किया जाएगा, अंत्येष्टि, यानी कि प्रॉपर क्रियाक्रम भी किया जाएगा शेर का। ये नहीं है मार के खा जो, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका शिकार नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है ना अपने शौक के लिए किया, शौक के लिए कुछ नहीं करते थे, वो क्या करते थे, क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए करते थे। आज भी जयपुर में रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते थे। आपको समझ में आ गया सारी बात? तो ये पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम, ठीक है। लास्ट लाइन देखते हैं, इसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में आगे हो सकते हो प्रभु जी, आप भी आगे हो जाइए। वो लास्ट लाइन देख लो। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार बोलो, किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन को उच्चतर पद को प्राप्त किया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। वो बोलते हैं अगर किसी का, प्रभु जी अगर नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो चेयर पे बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। अगर आपकी जो भी कार्य है, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा कार्य क्या है, पढ़ाने का, ठीक है। एक आदमी बिजनेसमैन, उसका कार्य क्या हुआ, बिजनेस करना। एक आदमी जॉब करता है, उसका कार्य क्या हुआ, जॉब। अगर वो वाला काम बहुत अच्छे से करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। करना कैसे होता है, काफ़ी नए भक्त है तो उनको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कल एक कहानी सुना रहा था, सुनो ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण था, ठीक है। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है, अगर जो जेन्युइन ब्राह्मण है उसका काम क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक पूजा पाठ वगैरह करना, घरों में जाके पूजा पाठ करवाना, जो दक्षिणा मिले अपने आप वो लेना, उससे जीवन निर्वाह करना, यही काम होता है।
अब उसके सामने वाला जो घर था ना ब्राह्मण के सामने, वो तो पूरा दिन पूजा पाठ आता था, लोग आते थे उसके घर में, वो कुछ बोलते थे मेरे लिए यज्ञ करो, ये करो, पाठ करो, वो अपने घर में करवाता था। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहता था। तो यजमान आते थे उनको बाहर तक छोड़ने, बार बार आता था। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला घर जो था ना, वो पता किसका था? एक वैश्या का था, प्रोस्टिट्यूट का। अब क्या होता था कि वो सुबह सुबह जैसे बाहर तुलसी जी है, तुलसी जी को जल चढ़ाने गया ब्राह्मण, तो उसने देखा है प्रोस्टिट्यूट का दरवाज़ा खुला है और उसके घर से कोई आदमी बाहर जा रहा है। तो वो बोलता था छी 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 छी, इसने तो पूरा मोहल्ला ख़राब कर रखा है, ये तो गलत काम ही करती है। फिर वो अंदर जाता था, 1-2 घंटे पूजा पाठ करता था, फिर वो बाहर आता था। अब सपोज़ वो प्रोस्टिट्यूट भी तुलसी जी को जल चढ़ानी होती थी, फिर बोलता था छी 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 छी, कितने गलत काम करती है, ऊपर से ढकोसला करती है, तुलसी जी को जल चढ़ा रही है। फिर वो सपोज़ दोपहर को बाहर आया, फिर कोई आदमी उसके घर जा रहा है, फिर उसको बुरा भला बोलने लग जाता था, फिर शाम को बुरा भला बोलता था, फिर रात को बुरा भला बोलता था। तो ब्राह्मण चिंतन प्रोस्टिट्यूट्स का करता रहता था कि गलत काम है, गलत काम है, गलत काम है, गलत काम है, ये है, ये है, ये है, ये है। और प्रोस्टिट्यूट हमेशा ये सोचती थी कि भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया आपने, ब्राह्मण को देखो कितना अच्छा है, सुबह से लेकर रात तक पूजा पाठ करता रहता है, भगवान मैं भी ऐसे कब शुद्ध होगी कि मैं आपकी 24 घंटे पूजा कर पाऊंगी। वो जब भी ब्राह्मण को देखती थी उसके लिए अच्छा विचार सोचती थी, और वो जब प्रोस्टिट्यूट को देखता था वो बुरा सोचता था, कितनी बुरी लेडी है, कितनी बुरी लेडी। वो कहती थी कितना अच्छा इंसान है, कितनी पूजा करता है, कितने भगवान खुश हो रहे होंगे। तो जब वो दोनों मरते हैं तो ब्राह्मण को नरकों में जगह मिलती है और प्रोस्टिट्यूट्स को ऊपर के लोगों में। तो ब्राह्मण कहता है कुछ गलती हुई है भगवान यमराज जी आपसे, वो गलत सामने वाला घर था, आप मुझे लेके नरकों में। वो कह रहे नहीं भैया, तेरे को दिखाते हैं प्रोस्टिट्यूट का है। वो प्रोस्टिट्यूट ऊपर कह रहा है वही तो कह रहा हूँ गलती हुई है, मेरे को वहाँ होना चाहिए था। कह रही क्योंकि तेरे चिंतन में क्या था वो, और उसके चिंतन में था कि तुम पूजा पाठ कर रहे हो, तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तो सारी बात ये हो जाती है कि चिंतन क्या है, चिंतन क्या है। एक आदमी पत्थर लगा रहा है बाहर, और वो पत्थर लगाते मन में गुनगुना रहा है, राम लखन घर आए, राम लखन घर आए, वो मन में गुनगुना रहा है। और हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं, हम सोचते हैं आप कितने भाग्यशाली हो। वो धूप में पत्थर लगाते हैं भगवान का, भगवान उसको ज़्यादा फल दे रहा होगा, काम भी कर रहा है, पत्थर भी लगा रहा है। हम संडे के संडे आए, लेकिन 6 दिन तो काम करेंगे ना, तो क्या उसके अंदर भगवान है? अगर है तो भगवान प्रसन्न है। अगर उस टाइम पे नहीं है और 1-1.5 घंटा हम यहाँ पे बैठ के सोच लेते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, तो सॉरी, ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग में ये सिखाया जा रहा है कि आपको 6 दिन ही नहीं, 365 दिन कैसे बिताने हैं, हर क्षण कैसे बिताना है। आपको सुबह उठना कैसे चाहिए, उठ के करना क्या चाहिए, रात को सोना कैसे चाहिए, सोने से पहले प्रेयर कैसे करनी चाहिए। ये लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन देखो क्या लिखी हुई है। प्रभु जी आपको समझ में आ रहा है? ध्यान नहीं है ना आपका, थोड़ा थोड़ा बाहर चला गया है ना। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करते हुए, स्वधर्म मतलब पत्थर लगाने वाला पत्थर लगा रहा है, वो वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग कर रहा है, कोई साफ़ करने वाला साफ़ कर रहा है, वो अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अगर वो भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। ये रहा पहले पैराग्राफ का निचोड़। यही बता रहे हैं अर्जुन को, युद्ध कर, तेरा धर्म क्या है? लड़ाई करना। पत्थर वाले का धर्म क्या है? पत्थर लगाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ऊंचे लोगों में जाएगा, तू भी ऊंचे लोगों, दोनों बराबर मिलोगे, कुछ मत सोचना। तुम मर भी जाओगे तो भी ऊंचे लोगों में जाओगे, कुछ मत सोचना। अगला, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लास्ट में जो भी आए हैं वो जब पता चल गया क्या चल रहा है। सेकंड का 30, अब 32। यद्रच्छे चा उपनम स्वर्ग द्वारम अपवृतम सुखिनाम क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धम ईर्दिशम। हे पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। अब देखते हो कई बहुत सारे आर्मी के पर्सोनल जो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि लड़ाई कितनी बार हुई है, 2 बार पाकिस्तान से, 1 बार चाइना से, 2 बार छोटे-मोटे कारगिल या छोटे-मोटे कश्मीर में चलता रहता। तो पूरी इंडिया की फ़ोर्स को लड़ने का मौका तो नहीं मिला, तो वो अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ड्यूटी पे आर्मी में ही है, लेकिन उनको लड़ाई जिसके लिए उन्होंने फ़ौज में लिया था
कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे, वो रक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्रंट पे खड़े हैं, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। जैसे अब सपोज किसी शहर में तैनाती होगी, या कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें प्रेसिडेंट के साथ वो आर्मी के बड़े बड़े ओहदे वाले खड़े होते हैं उसके पीछे। अब उनको क्या है कि रक्षा करनी है, बस वो खड़े हुए हैं वहाँ, आर्मी प्रेसिडेंट तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाएगा मारने के लिए, है ना, वो खड़े हैं बस कि ठीक है वहाँ पे है। पर वो क्या लिख रहे हैं कि देखो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हो गया, तुम्हारे को मिल गया अवसर, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब बात तो अर्जुन की कर रहे हैं, हमारी तो कर नहीं रहे, लेकिन भगवत गीता तो हमारे लिए है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो अपना काम करते करते मर भी जाता है, लेकिन भगवान सेंटर में होने चाहिए। ये कहाँ लिखा है? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तो भगवान सेंटर में है ना, तो कृष्ण के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं अर्जुन। अपनी मर्जी से तो नहीं करे, अपनी मर्जी से तो कहते युद्ध नहीं करना, लेकिन भगवान ने कहा युद्ध करना है। तो सेम भगवान हमारे को बहुत कुछ बताते हैं। तो सेम भगवान हमारे को हर पल कुछ ना कुछ बताते हैं। क्या हम उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो भगवान कर रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर उसको करते करते मर भी जाओ और भगवान सेंटर में है तो आप स्वर्ग लोग जाओगे। तो कितना आसान है स्वर्ग जाना, कि काम करना है और भगवान को सेंटर में रखना है। कि अगर जैसे माताएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, अब माता जी इसका घर पे काम क्या होगा अगर वो वर्किंग नहीं है तो, कि घर की साफ़ सफाई करना या करवाना, है ना, घर का खाना बनाना, ज़्यादातर माताएं खुद ही बनाती हैं अपना घर का खाना, सफाई करना या करवाना, कपड़े धोना या धुलवाना, यही होगा, बच्चे पालना, यही अगर वो वर्किंग नहीं है तो। अब वो ये हर कार्य में भगवान की उपस्थिति ले आएंगी कि मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूँ, इससे मैं भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर पूरे परिवार को दूंगी। तो ये कृष्णा कॉन्शियस हो गया। मैं भगवान जो बच्चे दिए हैं भगवान ने, वो भगवान का आशीर्वाद है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी भगवान के आशीर्वाद से हैं, मेरे माँ बाप भी मैं भगवान के आशीर्वाद से हैं। मैं उनके लिए कपड़े धुलवा रही हूँ या धो रही हूँ, मैं अपने घर जहाँ भगवान का वास है उसकी सफाई कर रही हूँ। तो चेतना में जब ये ले आते हो और वही करते करते अगर लाइफ बिता देते हो तो ऊंचे के लोग मिलते हैं, ऊंचे लोग। आने वाले चैप्टरों में बताएगा स्वर्ग से भी ऊपर क्या होता है, क्योंकि स्वर्ग भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो पहली 2-3 लाइनें पढ़ते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे यह युद्ध में कुछ तो लाभ नहीं दिख रहा। अर्जुन क्या कहता है, मारने से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे गुरु मर जाएंगे, मेरे चाचा, मेरे ताए, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मामा, मेरे सब मर जाएंगे, क्या फ़ायदा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन जब ऐसा बोलता है तो क्या होता है, अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्ति केवल अज्ञान जन है, तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बातें करना छोड़ दे। क्या कहते हैं, ये बेवकूफ़ी करने वाली बातें करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे को डायरेक्शन दे रहा हूँ। कौन डायरेक्शन दे रहा है? भगवान कह रहे हैं कि इनको मारना पड़ेगा क्योंकि तेरा क्षत्रिय का धर्म है। अगर तुम ब्राह्मण होते तो मैं मना कर देता कि नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता है दया करके छोड़ दो, लेकिन तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे को उस धर्म का पालन करना पड़ेगा। वे अपने स्वाधर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, जो उनका वर्ण आश्रम का मतलब क्या है, जो जिस जात में है, जो काम करता है, जैसे सोल्जर है तो सोल्जर वाला काम, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला काम, लाइक दिस। स्वाधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था क्योंकि उसका धर्म क्या था, क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय को क्या करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो क्या कहता, लड़ना नहीं है। तो अब क्या होएगा, नरक में जगह मिलेगी। आई बात समझ में? किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। तो अगर आप एक क्षत्रिय हो और सिर्फ दर्शक रह जाते हो तो ये मूर्खपन है, वही बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, तो इसमें भगवान ने डायरेक्शन दी है कि आपको अपना काम करना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा। अगला श्लोक करते हैं, एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे,
इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अब पुलिस वाले होते हैं, अगर कोई दंगा कर रहे हैं तो उनको डंडे भी मारते हैं ना, क्योंकि उनका काम क्या है, शांति मेंटेन करना, तो उनके लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना पड़ेगा। किस पूर्वक? धर्मपूर्वक। 33rd अचेत्वम इमं धर्मयम सग्रमं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तम चाहित्वा पापम अवाप्स्या। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। देखो दोबारा सुनो, उपेक्षा समझते हो ना? उपेक्षा का मतलब होता है जो काम करना है वो नहीं करना, उसकी उपेक्षा कर दी। किंतु यदि तुम अब जहाँ पे भी तुम लिखा है ना, अब ध्यान से सुनना जरा, जहाँ पे भी तुम लिखा है वहाँ पे क्या लिखना? अपना नाम, ठीक है, नॉट अर्जुन, अपना नाम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तुम, ठीक है, आप जैसे सब पढ़ते हो ना, तो भगवान किससे बात कर रहे हैं? आपसे, सबसे, मतलब मेरे से भी है। कह रहे हैं कि आपने जब ये वाला काम जो आपके धर्म के अकॉर्डिंग लिया है, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो आपका युद्ध क्या है? पढ़ाई। जैसे युद्ध करना पड़ता है ना, अरे बोर्ड के पेपर आ गए, साइंस तो समझ में नहीं आ रही, मैथ्स तो हुआ लग रहा है, बाप रे बाप, प्री बोर्ड की टेंशन, प्री बोर्ड ख़त्म नहीं होते, फिर बोर्ड की टेंशन हो जाती है। वो ख़त्म होते हैं तो बोलते हैं 11वीं मुश्किल है, पहले से शुरू कर दो। बचपन से पेरेंट्स बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को। कैसे बनाते हैं? पहले तो 4-5 साल खिलाते रहते हैं उसको, हाँ, जैसे आपका मन है। तो अभी गाड़ी पे लेके आए होगे आप, ठीक है, क्योंकि वापस नहीं आओगे आप, तो फिर इनको ले जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, हाँ, ले जाओ, ठीक है। आप लोग ना वो प्रसाद बंटना है, तो आप लोग जो प्रभु जी के साथ आए हैं वो चले जाएंगे प्लीज़। तो अच्छा, आपने भी तो जाना होगा ना, इनके साथ आए हो आप? अच्छा, आप अलग हो। तो क्या होता है, जैसे धीरे धीरे हम पढ़ते रहते हैं, बोलते हैं बस 8वीं तक बेस बना लो, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना। जब 8वीं ख़त्म होती है हम बोलते हैं बेस बन गया, तो बोलते हैं 9वीं बड़ी मुश्किल है, ध्यान से पढ़ना। फिर 9वीं बड़ी मुश्किल से बेस बनाते, कह रहे 10वीं से आपके आगे का करियर सेट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट 10वीं क्लास दिलवाती है, ऐसे ही होता है। फिर 10वीं में जान निकाल देते हैं, फिर 10वीं का रिजल्ट आता है, फिर बोलते हैं 10वीं में तो हो गया, लेकिन 11वीं बहुत टफ है, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, बोलते 11वीं में देख ले, पहले ही पढ़ना शुरू कर दे। साइंस लेनी है ना, पढ़ ले, कॉमर्स है तो मैथ्स पढ़ ले, नहीं तो मैथ्स नहीं है तो कुछ नहीं है। और बच्चा बेचारा जैसे तैसे जो भी लेता है, फिर बोलते हैं 11वीं बेस है, अगर 12वीं अच्छी करनी है तो 11वीं बेस है, 11वीं अच्छी नहीं की तो 12वीं बर्बाद हो जाएगी। तो फिर 11वीं में होते हैं, फिर 12वीं में बोलते हैं देख कॉलेज आ गया, आगे 12वीं में तेरा रिजल्ट नहीं आया तो कॉलेज में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये गोपाल जी बोलते हैं। तो ऐसे 12वीं हो जाती है, अब तो रिलैक्स मिलना चाहिए। अब जैसे मैं तो पढ़ाता हूँ, 12वीं के बोर्ड के पेपर ख़त्म नहीं होते, बेचारों को बोलते हैं इंस्टीट्यूट जा, क्योंकि एंट्रेंस पेपर देना पड़ेगा अब तेरे को, CUET है, बहुत सारे हैं, है ना। अब 12वीं मार्च में ख़त्म नहीं होता है, अप्रैल में एंट्रेंस आ जाता है, अप्रैल मई जून एंट्रेंस चल रहे होते हैं, जून तक लड़ रहे होते हैं बच्चे। ये युद्ध की बात बता रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं ना युद्ध है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। आप सोचो कभी युद्ध खत्म होगा, कभी नहीं होगा, वही मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब 12वीं खत्म होगी, आप कहते हो अब तो चैन की सांस लेना, बेटा एंट्रेंस कर ले, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर तो बल्ले ही बल्ले है, फिर तो कॉलेज में हो जाएगा। फिर आप कॉलेज में जाते हो, एडमिशन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। चलो जिस कॉलेज में जाते हो वहाँ पे ये टेंशन शुरू हो जाती है, कैरियर काउंसलिंग शुरू हो जाती है कि अगर कॉलेज में अगर अच्छे नंबर ना आए तो नौकरी नहीं मिलेगी कभी ज़िंदगी भर, तो जितनी पढ़ाई करी है सब बेकार होने वाली है। आप बोलो मेरे को 18 साल से बेवकूफ़ बना रहे हो, 3 साल और बेवकूफ़ बना दिया कि भैया अब मेरे को क्या करना है, अब नौकरी है तो कॉलेज अच्छे से पढ़ना होता है। अब कॉलेज हुआ तो कह रहे बेटा एक बात बताऊँ, आजकल नौकरी जो है ना एंट्रेंस देनी पड़ती है। तो बोले कॉलेज तक क्यों पढ़वाया था आपने? वो बेस बन रहा था।
फिर अब एंट्रेंस क्लियर कर लो, एक एक एंट्रेंस में 20-20 लाख बच्चे बैठे होते हैं। अब बड़ी मुश्किल से एंट्रेंस क्लियर कर लिया, अब आपकी सरकारी नौकरी लग गई सपोज़। अब घर वाले कहेंगे भाई आज के बाद हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो लाइफ शुरू होगी। अब आप घर वाले हट गए, लेकिन उसी दिन से ऊपर एक बॉस आ गया। अब बॉस कहता है मैं जब तक तू 60 साल का नहीं होगा ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरे को मैं पैसे दूंगा। तो अब मैं रात को भी रुकवाऊंगा, शाम को भी काम भी करवाऊंगा, गाली भी दूंगा, जो भी करवाना है, जैसे भी कराना है वो कराऊंगा। अभी वो बॉस से संभले ही नहीं है, तो लड़कियों को शादी लड़के और लड़कों को लड़की, यानी कि हस्बैंड वाइफ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ। युद्ध, ऑफिस का युद्ध, पहले घर वाला युद्ध खत्म हुआ, फिर ऑफिस का युद्ध शुरू हुआ, फिर हस्बैंड या वाइफ एक युद्ध शुरू और हो गया। अभी वो युद्ध संभलना शुरू भी नहीं होता है तो एक बच्चा आ जाता है। अब वो कह रहे हैं यार वो युद्ध तो नहीं है, लेकिन वो है तो युद्ध ही। वो बच्चा रात को सोता नहीं है, आप रात को जाग रहे हो, लेकिन सुबह 9 बजे ऑफिस नहीं पूछा तो बॉस छोड़ेगा नहीं। अब आप कहते हो मेरी नींद नहीं पूरी हो रही भाई, मैं कि टेंशन में जी रहा हूँ। अब बच्चा बड़ा होने लग जाता है, आप कहते हो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो बच्चे के 9वीं 10वीं के पेपर आ जाते हैं, बोर्ड के पेपर, उसके टेंशन आपके माँ बाप को होती है कि नहीं होती? बताओ कब इतने में बूढ़े हो जाएंगे आप। तो अब एक क्षण भी बता दो कि युद्ध कब ख़त्म हो रहा है। युद्ध कभी नहीं ख़त्म होगा। आप सोचो कि लाइफ स्मूथली होगी, नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में पहले दिन बता दिया है, जो ये कलयुग है ये दुखालयम अशाश्वतम। इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव लो, इसका मतलब होता है युद्ध को लड़ो भैया, युद्ध लड़ने में मज़ा ले लो। अब स्कूल कॉलेज में मज़े तो लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना, हाँ लड़ रहे हैं तो मज़े ले रहे हैं, क्या हुआ, दोस्त भी बनते हैं, पढ़ाई का भी टेंशन है हम, लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं, कॉलेज में भी एंजॉय करते हैं, ऑफिस में भी एंजॉय करते हैं, लेकिन एक युद्ध तो लड़ना, क्योंकि उस युद्ध को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो एंजॉय और युद्ध करते करते ज़िंदगी निकल गई। भगवान कहते मेरा नाम तो लिया नहीं तूने, अब मैं तेरे को नरकों में भेजूँगा, अब तू एंजॉय कर, अब खा सड़क पे मोमोज गोलगप्पे बिना भोग लगाए, तो होगा फंसोगे। और ये सबकी आदत है कि यार कुछ भी मिला, कुछ भी कहीं से भी खा लिया, क्या हुआ। जानवरों में हमारे में क्या फ़र्क होता है? यही तो फ़र्क होता है कि हम पढ़ लिख के बुद्धि को विकसित करें, भगवान को ऑफर करें पहले और फिर खाएं। ये पूरे श्लोक का निचोड़ बता दिया मैंने, कहानी दी। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वाधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। कि बोला गया युद्ध करना, आप फिर कर नहीं रहे तो पाप तो लगेगा लगेगा। और तुम योद्धा के, देखना ये ठट्टा वो वेल्डिंग वाला कर रहा है, अगर है तो चुप करा दो उसको, 1 घंटा क्लास है ना, आधे पौने घंटे बाद कर लेंगे। तुम योद्धा के रूप में भी नहीं अपना यश खो दोगे, यानी कि आप अगर भगवान की डायरेक्शंस को फॉलो ना करके अपने धर्म का पालन नहीं करते तो आप कहीं के नहीं हो, कहीं के नहीं हो। तो भगवत गीता क्या सिखा रही है कि जो आपका काम है उसको अच्छे से करो, बाकी भगवान सहारे। लेकिन आप अच्छे से ना, बच्चा करेगा, एक बात बताओ, करना तो भगवान नहीं है ना, तो कम नहीं पड़ता। भगवान ने ये नहीं बोला, भगवान ने कहा युद्ध करो, यानी कि बेस्ट पढ़ो, क्योंकि युद्ध में पीठ दिखा के भागना नहीं है। अपनी जॉब, बिजनेस, गृहस्थी, पढ़ाई सब कुछ अच्छे से करना है। अगर ये नहीं करते तो आप अपना यश भी खो दोगे और नरकों में तो जाओगे जाओगे। तो 1-2 लाइनें और पढ़ेंगे, फिर अगला श्लोक करेंगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके अपने यश को अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्होंने हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में एक पशु पात्र प्राप्त किया था, अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वे अपने धर्मपिता और स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्ध, तो उसने अनगिनत शस्त्र ले लिए थे और सब राजाओं को हरा के, बड़े बड़े देवी देवताओं को हरा के शस्त्र ले लिए और बहुत यशस्वी बन गया। भगवान कहते हैं सारा लूज़ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो।
यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर देगा। इतना देवी देवताओं को हराने फेस टू फेस, मतलब हमारे को अगर खुश करना हो शिव जी के सामने आए, हम कहेंगे यार जिंदगी बन गई, वो कहते नरक में जाएगा, क्योंकि जिस लिए तूने अस्त्र लिया शिव जी से उस अस्त्र का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। जिस लिए पढ़ाई करी उस पढ़ाई को अगर आप यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या था? सही बात नहीं है। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी। युद्ध कर रहे और मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वर्ग तो तब भी मिलेगा। भगवान ने हमेशा यही तो बोला है कि आप अपना बेस्ट प्रयास करो, बाकी तो मैंने जो करना है वो करूँगा, है ना। किसी की लाइफ रुकती नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी के अगर 90% नहीं आएंगे तो वो गया ज़िंदगी बर्बाद? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे, शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, किसी मजबूरी कारण उन्होंने, माँ बाप नहीं थे, बचपन से बिजनेस शुरू कर दिया, करोड़पति अरबपति भी है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में अपना बेस्ट प्रयास किया। और जिसमें भी आप अपना बेस्ट प्रयास करोगे उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अभी हमारा बेस्ट प्रयास क्या होना चाहिए? स्वधर्म। लेकिन अभी हम ना शायद अभी भी थोड़ा गलत समझ रहे होंगे। स्वधर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? जो भगवान ने बोला है उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो हमारी ज़िंदगी में भगवान ब्लैंक हो जाते हैं, बाकी सब कुछ आ जाता है। अगर मैं बोलूँ आप कितनी देर भगवान का नाम लेते हो हर रोज़? मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे को 12 साल हो गए इस्कॉन में आए हुए, तो 12 साल पहले हम कितना भगवान का नाम लेते थे। घर में एक छोटा सा मंदिर गया, मत्था टेकते थे, जय हो, नीचे आ जाते थे। मेरी मम्मी बोलती थी एकादशी है आज ना अंडा मत खाना। मैं कहा क्यों बताया एकादशी है? फिर अब बताते ना, मुझे पाप तो ना चढ़ता ना। आ रही बात समझ में? एक से आई बात समझ में? तो हम धर्म को जानना ही नहीं चाहते थे, हम धर्म को जानना ही नहीं चाहते। तो भगवान ने क्या बोला है? जो धर्म के अकॉर्डिंगली, तो धर्म क्या बोलता है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाएगा वो धर्म है, और जिस चीज़ के लिए भगवान मना करते हैं उसको नहीं करेंगे तो वो भी धर्म है। जैसे भगवान ने कहा नॉनवेज नहीं खाना, तो ये धर्म है, ये नहीं खाना। शराब नहीं पीनी तो नहीं पीनी, ये धर्म है। क्योंकि डॉक्टर क्या बोलता है? डूज एंड डोंट्स, ये दवाई लो लेकिन साथ में तली हुई चीज़ें मत खाना, मीठा कम खाना, है ना। ऐसे बोलोगे तो हेल्थ जल्दी ठीक हो जाएगी, सिर्फ दवाई खाने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम ले रहे हैं ना, नॉनवेज खाने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि भगवान ने तो बोला अपना काम करो, तो हम तो काम ही कर रहे हैं। जो मुर्गा खाने में मज़ा है वो देखो आपको, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला श्लोक लेके चलते हैं, हमारे पास टाइम है ना। नेक्स्ट श्लोक। अकीर्तिम च अपि भूतानि कत्यश्चिन्तिते अव्ययाम संभवितस्य च अकृति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। क्योंकि इसका मतलब अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे को आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, उसको मारा नहीं जा सकता। उसके बाद भी अगर तुम ये सोचो कि मैं इनको मार रहा हूँ, तो तुम अपने आप को क्या सोचते हो? कर्ता, यानी कि अपने आप को डूअर समझ रहे हो, कर्ता समझ रहे हो। जबकि मैंने क्या बोला? करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारे को क्या करना है? सिर्फ अपने धर्म का काम करो। एक बच्चा पूरी दिन रात लगा के मेहनत करता है, 2 बच्चे, एक बच्चे के 90% आ जाते हैं, एक के 60 आते हैं। मेहनत दोनों ने बराबर करी, तो उसमें उस बच्चे का क्या फॉल्ट है जिसने मेहनत करी और 60 आ गए? तो भगवान ने तो कहा ही नहीं है कि भैया तुमने इस लड़ाई को जीतना है। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा लड़ो और इनको मारो। अब इनको मारेंगे तो वो भी तो मर सकता है, लड़ाई तो लड़ाई है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा जीतना पड़ेगा। एक बार भी पूरी भगवत गीता में दिखा देना जीतना पड़ेगा। पर उनकी जीत इसलिए पक्की थी कि भगवान उनके साथ थे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ना तो पूरी दुनिया थू थू करेगी। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर। अगर किसी की इंसल्ट हो जाए सम्मानित की, जैसे कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को
बोला ये चोर है, ये तो इसने मेरे 100 रुपये लिए। वो 100 रुपये, हमारे 1 करोड़ उसके 100 के बराबर भी नहीं होंगे शायद, है ना। क्योंकि मतलब मेरे लिए तो आपने ये बोल दिया चवन्नी नहीं है, 5 पैसे भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है, 1 पैसे का भी 1000वां हिस्सा मैंने चोरी किया। क्योंकि ये बोल कर है पब्लिकली, वो है ना आपके ऊपर इतना बड़ा मानहानि का दावा कर देगा, आप लुट जाओगे कि 100 रुपये का ब्लेम लगा दिया मेरे। तो वही ये कह रहे हैं कि आपका अपयश होगा अगर अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश क्या है? मृत्यु से भी बढ़कर है। तो कुछ लाइनें लिखी हैं इसमें तात्पर्य। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने के अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो सलाह देंगे तुम्हें युद्ध पे मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ है। पीठ भाग कर तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं ना उस चीज़ का। इससे बेटर क्या रहेगा? लड़ो। सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। नेक्स्ट श्लोक में लिखा हुआ है 35 में लिखा है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, इसी तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। देखो हर पैराग्राफ का ये पूरा आने वाले 8-10 श्लोकों का निचोड़ एक ही निकल रहा है कि तुम्हारे को युद्ध लड़ना है, अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। जो तुम्हारा साथ देने के लिए आए उनको ये लगेगा कि तुम डर के भाग रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर डर नहीं है, तुम तो रेस्पेक्ट कर रहे हो कि मेरे में भीष्मपितामह है, मेरे गुरु हैं, ये है वो, मैं कैसे मारूँ। तो अगले पैराग्राफ में भी क्लियर कट ये लिखा है। तो क्या लिखा है इसके अंदर? एक लाइन ये लिखी हुई है, इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो इन 5 श्लोकों का निचोड़ कोई 1-2 लाइन में बताना चाहेगा? 1-2 लाइन में सबको समझ में भी आ गया? कोई बोल नहीं रहा? यस माता जी। वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना है, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है, भगवान को सेंटर में रखकर अपने स्वधर्म के अकॉर्डिंगली, वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली काम करना। और वर्णाश्रम जात से नहीं होता, वर्णाश्रम हम जो भी काम कर रहे हैं, आजकल वैसे भी जात के अकॉर्डिंगली तो काम मिलता भी नहीं है। कोई बोले मैं शर्मा हूँ तो मेरे को ब्राह्मण वाला कार्य मिलेगा, नहीं मिलेगा जब तक वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा नहीं। कोई बोलेगा मैं राजपूत हूँ तो मेरे को आर्मी में जगह दे दो, कहेगा नहीं, एंट्रेंस क्लियर करो। सही बात है ना। तो ऐसे तो वर्णाश्रम अब क्या है, तो काम के अकॉर्डिंगली जो जिस काम में है उस काम के अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट काम करे, और क्या करे? भगवान को सेंटर में। यहाँ तक सबको डाउट कोई? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 1-2 हम श्लोक और ले सकते हैं। अगले श्लोक में लिखा है, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों का तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई। तो तुम्हारे शत्रु क्या कह रहे हो? तुम्हारे जो शत्रु हैं यानी कि कौरव, तो ये नहीं सोचेंगे कि तुम बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट छोड़ रहे हो। तुम्हारे शत्रु कहेंगे देखा इतनी बड़ी आर्मी थी ना, डर के भाग रहा है, और हंसेंगे तुम्हारे। तुम उनको कितना क्लैरिफाई करते रहोगे कि नहीं भाई ये नहीं है, ये नहीं। इससे भी हम क्या सीखते हैं कि दुनिया को क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यू डू योर लेवल बेस्ट, दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन टू ऑल। आप दुनिया को सफाई देते रहोगे ना, कुछ नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो तुम्हारा काम है वो अच्छे से करो, वही क्लैरिफिकेशन है। आई बात समझ में? इस पर किसी को कोई डाउट? ठीक है ना। बच्चे का काम क्या है? पढ़ना, और टीचर जो बोलता है तुम नलायक हो, तुम नलायक हो, तुम नलायक हो। एक बच्चा बोलेगा हाँ मैं नलायक हूँ, मैंने पेपर ही नहीं था, तो वो कहेगा मुझे मालूम है, इसमें कौन सी नई बात कर। तो तुम्हारे पे सारी दुनिया और सारे क्लास वाले और टीचर्स हंसेंगे। तो तुम्हारे को बोलना नहीं है। जो बच्चों को बोले नलायक 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 कह रहे कोई बात नहीं, पेपर आने दो। पेपर आया, तुमने 1st 2nd 3rd 4th 5th जो भी 70 80 90% ले आए, टीचर की बोलती भी बंद, सारी दुनिया की बोलती। तो अपने काम से चुप कराना है। तो अर्जुन को बोले अपना काम कर भाई, लड़ मार, तब वो काम होगा। तो क्या लिखा हुआ है? प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनुचित यानी कि बिल्कुल उचित नहीं बताया। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन की तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। अब मजे की बात बताऊं क्या है? इस श्लोक के बाद भगवान ने ना
युद्ध के बारे में बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पिछले 7-8 श्लोक में सिर्फ यही बोले। अब पूरी भगवत गीता में युद्ध युद्ध थोड़ा बोलेंगे, लड़ो 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 लड़ो, हो लिया, इसके बाद नहीं बोल। इससे हमारे को क्या सीखना है, एक लिमिट तक सिखाना चाहिए, इसके बाद नहीं सिखाना चाहिए। जैसे एक कहानी सुनाते हैं, अब बड़ी देर से हंसाया नहीं है, फिलॉसफी चलती। एक बार एक गधे का नाम सुन के खुश हो गए हो एक बार एक गधा और एक चीते की लड़ाई हो जाती है। गधा बोलता है देखो घास कितनी नीली नीली है। चीता कहता है अरे गधा है तू घास नीली कहाँ से होती है, घास तो हरी होती है। चीते को बोलते थे को दिखाई नहीं दे रहा है, नीली घास है ये सारी। कह रहे हरी है, कह रहे नीली है। इन दोनों की लड़ाई। कह रहे देख, चीता बोलता है आज मेरा एकादशी का व्रत है, अगर एकादशी ना होती ना मैं तेरे को खा जाता अभी तो वो दोनों में बहस रुक ही नहीं रही होती। कह रहे चल राजा के पास। तो किसके पास जाते हैं वो, शेर के पास। शेर ऊंची चट्टान में बैठा होता है। आज एकादशी है वैसे भी, शेर भी नहीं खाएगा तो चीता कहते हैं महाराज इस गधे को समझाओ। कह रहे क्या हुआ, कह रहे घास नीली है। शेर गधे के पूछता है, कह रहे महाराज मैंने सोचा चीता समझदार होता है, अभी भी आप भी देख लो यहाँ पे भी घास है, नीली नहीं है। शेर को बोलता है घास देखो नीली तो है। शेर चीते को देखता है, कह रहे महाराज देखो इतनी देर से समझा रहा हूँ इस गधे को, ये घास हरी ही होती है और ये सारी दिख तो नहीं है, हरी ही है। शेर बोलता है अपने सिपाहियों को चीते को ना जेल में डाल दो। कह रहे महाराज क्या हुआ, कह रहे घास तो नीली है सारी। शेर कहता है चीता परेशान, कह रहे यार घास नीली कैसे होगी। कह रहे तेरे को जब पता है वो गधा है, तू गधे के साथ बहस कर रहा है, तो तू सबसे बड़ा गधा है, इसको उठा के जेल में डालो। और इसके लिए पनिशमेंट क्या है, इसका 1 महीने के लिए मौन व्रत है तो अपनी बात को एक लिमिट तक प्रूव करने की जरूरत है ना। अब सर नहीं फोड़ना भैया, सर नहीं फोड़ना, बता दिया भगवान ने। देखो हाँ आप एक बार समझाओ, 2 बार 3 बार ठीक है, बस छोड़ दो। पता है गधा है, क्या करोगे, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता तो आप समझ जाओ भैया कुछ नहीं हो सकता। क्या कर लोगे आप, खुद गधे बन जाओगे, जेल में डाल देंगे। सही बात है ना। अब ये भी परिस्थिति टू परिस्थिति होता है, वो डिपेंड कर, ये हर जगह परिस्थिति सेम नहीं चलती। अब बच्चा आपका, उसको ये थोड़ा बोलोगे मैंने 5 बार समझाया था पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा मैंने छोड़ दिया। उसको तो कई 5 साल भी समझाना पड़ेगा, जब तक वो पढ़ता रहेगा तब तक समझाना पड़ेगा। लेकिन पता है कि यार अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको समझाने से कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ के बाद भगवान किसकी बात नहीं करते, युद्ध की बात नहीं करते। तो अगले श्लोक में लिखा है कुंती पुत्र यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग, इस श्लोक के बाद नहीं करेंगे, ठीक है। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। वो कह रहे हैं अगर हार गए तो तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो पूरा साम्राज्य तुम्हारा। तो दोनों ही केस में जीत है ना, नुकसान तो कहीं है ही नहीं, तो युद्ध लड़ो, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक लाइन लिखी हुई है, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा गया तो वह स्वर्गलोक जाएगा। उसको लग रहा था सामने बीच में तामा द्रोणाचार्य। हालांकि अर्जुन का पूरा विश्वास था, ये सिर्फ हमारे को सिखाने के लिए है कि जहाँ भगवान है, जैसे कि देखो भगवत गीता का लास्ट श्लोक देखो, अगर लिखा होगा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धुना तत्र श्री विजय भूत्र ध्रुवा नितिर्मति मम। जहाँ योगेश, ध्यान से सुनना, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं शक्ति है, वहीं नीति है। नीति मतलब भविष्य,
भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण है ना, तो वहाँ विजय भी है, ऐश्वर्य भी है, भाग्य भी है, सब कुछ फेवरेबल है। तो युद्ध में क्यों नहीं फेवरेबल होगा? तो ये लिखा हुआ लास्ट में। लेकिन भगवत गीता सबके लिए बनी है, तो जिसने जो समझना है समझ ले भैया, सर नहीं फोड़ सकते। जिसने जो समझना, घास नीली है तो नीली है भैया। भगवान ने बोला ना कर्म कर, हाथ में रिजल्ट नहीं है, तो नहीं ये समझना, ये समझ। सबके लिए बनी है, जिसको जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से वो चलता जाएगा और अपना रिजल्ट निकालता जाएगा। तभी बोलते हैं अगर किसी के मार्गदर्शक में सुनोगे तो वो आगे की बात भी बता देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भौतिकवादी एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बचपन में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ना, AEIOU से पहले एन लगता है, वॉवल लगता है ना। जब बोलते हैं एन एप्पल, है ना, एन अम्ब्रेला, ऐसे बोलते हैं ना, एन ऑरेंज। जब वो बड़ा होता है ना, वो बोलते हैं एन यूनिवर्सिटी, AEIOU से पहले एन। कह रहे नहीं, यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं लगता। कह रहे आपने तो सिखाया था AEIOU से पहले एन लगता है। कह रहे नहीं, जिसकी साउंड यू की निकलेगी उसके आगे एन नहीं लगेगा। कह रहे यार पहले कुछ बोलते हो अभी कुछ बोलते हो। कह रहे पहले बच्चों वाला रूल बताए थे, अब तुम बड़े हो गए तो बड़े वाला रूल बताऊंगा मैं। एक्सेप्शंस टू द रूल होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यहाँ क्यों नहीं होगा? परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी। आगे आगे बढ़ते रहोगे, अपना दिमाग खोलते जाओगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आज लाइन बोली थी कि आपके माँ बाप अगर धर्म के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आप थप्पड़ मारोगे। आपने बोला नहीं मारेंगे। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपके फादर मिलिट्री में है, पाकिस्तान आर्मी में है पिछले 20 साल से, और आप इंडियन आर्मी में होगे, दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों आमने सामने हो, तो दोनों एक दूसरे को गोली मारोगे, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी में दुश्मन है, धर्म का साथ नहीं दे रहा, और आप इंडियन आर्मी में हो, भारत माता की जय बोल रहे हो, वो नहीं बोल रहा, गोली मार दोगे। अब सही है, थप्पड़ मारना गलत हो गया, परिस्थिति चेंज होगी भाई। घर पे थप्पड़ थोड़ा मारेंगे, पर धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहे तो गोली मार सकते हैं हम। तो यही तो हो रहा था कौरवों पांडवों के बीच में। तभी तो भगवान कह रहे थे भैया मारना। आ रही बात समझ में? किसका यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं तो हमारे पास 10-12 मिनट है, नहीं है तो हम एक आधा श्लोक और भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट कीर्तन भी कर सकते हैं। है किसी का कोई डाउट? ठीक है, लास्ट श्लोक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 38। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्या बोला? तुम सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो, हानि लाभ छोड़ दो, हार जीत छोड़ दो, शुभ अशुभ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। क्या करो? सिर्फ जो काम बोला जा रहा है वो काम करो। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट, यानी कि हमेशा वर्तमान में रहो। उसका काम क्या था? अभी फ़िलहाल युद्ध करना। अभी आपका काम क्या? इस टाइम पे सिर्फ कथा सुनना। ठीक है? अगर सपोज़ जैसे अभी आप सब लोग तो बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, लेकिन कई बार जब बड़ा पंडाल होता है तो सारे तो तो बहुत सारे लोग तो फ़ोन पे होंगे और व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक सब चल रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पीछे गप्पे मारने का उनको स्थान मिल गया कि एसी वाला हाल है, बैठ जाते हैं, 500 लोग हैं, कौन देख रहा है। तो वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे ना। जबकि उस टाइम अगर वो कथा में बैठे तो क्या काम होना चाहिए? कथा। अगर भैया गेम्स खेल रहे हो तो गेम में ध्यान होना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, खाना खा रहे हो तो खाना में ध्यान होना चाहिए, गाना सुन रहे हो तो गाने में ध्यान रख लो। जिस भी काम के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ध्यान देते हो तो सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाते हो। जैसे 99.99% क्या करते हैं लोग कि प्रसाद खाते हुए फ़ोन पे रहेंगे, तो जो प्रसाद से शक्ति मिलनी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ध्यान का है आपका फ़ोन पे। मैथ्स करते हुए गाने सुनते हैं तो भैया ये नहीं चलता। मैथ्स करते हुए पूरा मैथ्स पे ध्यान दो। हाँ, अगर खेल रहे हो तो पूरा ध्यान खेलने में दे दो भैया, हार जीत को छोड़ो, मज़ा तो कर लो। मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, भाई लाइफ भी एक ही है। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और बोलो अभी पढ़ना नहीं है 2 घंटे में, कहता हूँ खूब मज़े करो। ओपनली बोलता हूँ मैं, खूब मज़े करो। बोलते हमने घूमने जाना दोस्तों के, मैं जाऊँ, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय कर रहे हो। तो भगवान क्लियर कट यहाँ पे यही बोल रहे हैं
कि बिना सुख दुख की बात सोचे, हानि लाभ की बात सोचे, विजय पराजय के विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हारा कोई पाप नहीं लगेगा। क्लियर? तो इसके अंदर 2-3 लाइनें देख लेते हैं। ये लास्ट श्लोक था, इसको खत्म करते हैं। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख, जैसे कोई आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को क्या फ़ायदा नुकसान छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कथा सुनना अच्छा लग रहा है तो बस डू इट, इससे मेरा क्या होगा छोड़ दो, वो अपने आप ही हो जाएगा। सही बात है ना? अगर इसके चक्कर में पड़ गए, लेकिन हमारे को नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जैसे एक बंदा बोले कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं भी अभी शराब को एंजॉय कर रहा हूँ, बोल सकता ना कि आप ही तो बोल रहे हो कि पढ़ाई के समय पढ़ाई, मैं शराब के समय शराब ही पी रहा हूँ। तभी हमने बोला है नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है ना, तो उसको विज्ञान बना ही नहीं सकते कभी आप, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने नॉलेज ही नहीं ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द नॉलेज, पहले आप ज्ञान लो और फिर उस चीज़ को एंजॉय करो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप फंसे ही बस, पूरी ज़िंदगी रोते ही रहोगे। एक बंदा कह रहा है, अभी हम कॉलेज में लेक्चर ले रहे थे, चलो पहले एक छोटी सी शेयर करता हूँ, थोड़ा मजाक वाली बात। एक बच्चा आया मेरे पास, सर इकोनॉमिक्स, बिल्कुल इकोनॉमिक्स में बहुत डर लगता है, 12th इकोनॉमिक्स में। मैंने कहा बेटा 2 किताबें हैं 50-50 नंबर की, माइक्रो एक मैक्रो। कह रहा माइक्रो तो आसान है, मैक्रो में बड़ा डर लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मैक्रो में 4 चैप्टर हैं, तो ये एक मनी वाला हो गया, एक बजट का हो गया, एक एग्रीगेट डिमांड। कह रहे मनी और बजट में तो कुछ है ही नहीं, ये जो एग्रीगेट डिमांड वाला है ना, ये 15 नंबर का, ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही बेटे ये 5 चीज़ें हैं। कह रहे नहीं, ये वाली 4 चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं, ये एक चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा इसको खोल के देख, क्या नहीं समझ में आ रहा? उसने खोला, कह रहे ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ये डायग्राम ऐसे ऐसे करा है, ये समझ में आया। कह रहा हाँ इकोनॉमिक्स समझ में आ गई। भाई क्या मतलब, पूरी 100 से 50 पे आया, 50 से एक चैप्टर पे आया 15 नंबर पे, 15 नंबर के चैप्टर में एक डायग्राम पे आया। अगर वो डायग्राम छोड़ भी देता तो 5-6 नंबर कटता, इसका मतलब 95 नंबर की तो आ रही थी। तो वही हम लोगों का हाल है। हम सोचते हैं कि अपने को कुछ नहीं, अरे नहीं आता तो एक चीज़ पे सीख लो, आपको लगेगा मेरे को बहुत कुछ। मतलब संडे के संडे भी अगर 1-1.5 घंटा भी बैठते हो भक्तों के साथ तो भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। लोगों को पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है। और हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम कोई अपनी बुक नहीं चला रहे। भगवत गीता कोई आज की नहीं है, ये करोड़ों सालों से चल रही है। राम कृष्ण का नाम कोई आज का नहीं है, करोड़ों सालों से चल रहा है। वही नाम ले रहे हैं, वही बुक पढ़ा रहे हैं, वही प्रसाद खिला रहे हैं, वही कीर्तन कर रहे हैं, तो कुछ भी नया नहीं है। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो इसमें करने में प्रॉब्लम क्या है? सही बात है ना? किसी को कोई डाउट? इसकी लास्ट लाइन लेके चलते हैं। दिव्य चेतना तो यही हो गई कि हर कार्य कृष्ण को निमित्त में, अभी बताया था ना, हर कार्य में कृष्ण को लेके आए, भगवान को लेके आए, और भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जब कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो अच्छे या बुरे फल, कोई अगर रजोगुण या तमोगुण यानी कि निम्न लेवल के कार्य, जैसे मैंने बताया कि मांस खाना या शराब पीना, झूठ बोलना, या बिना भोग लगाए भगवान को खाना, या फालतू की बातें करना पर जल्पा करना, अननेसेसरी टीवी यूट्यूब वगैरह पे टाइम वेस्ट करना, ये तमोगुण रजोगुण है। तो क्या हो जाता है, ये इंद्रिय तृप्ति होती है, इससे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपना समर्पित करता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का भी कोई ऋण नहीं होता। यानी कि जैसे हमारे को भगवद गीता में बताया जाता है 3 तरह के कार्य होते हैं। एक होता है कर्म, कर्म 3 तरह के होते हैं। एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है साकर्म। साकर्म का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि मैंने अच्छा कार्य किया, दान पुण्य किया। विकर्म का मतलब मैंने चोरी चकारी करी, और अकर्म का मतलब होता है मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी मतलब सब कुछ किया लेकिन भगवान की प्रेजेंस में किया, मतलब भगवान से अप्रूवल लेके किया, भगवान कृष्ण भावनामृत में रह कर किया। तो जब हम विकर्म और सकर्म अच्छा और बुरा करते हैं तो उसका फल मिलेगा।
लेकिन जब हम सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तो उसका कोई फल नहीं है, सीधा आप भगवान के धाम पे जा सकते। तो कितना आसान है, हर कार्य को बस यही सोचो, भगवान मैं कथा में बैठा, इससे अगर आप प्रसन्न होते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम इसमें है क्या, कुछ ना कुछ। हाँ वो भगवान ना, हाँ मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। उसमें 18.66 में भगवद गीता में लिखा हुआ है, 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इसका मतलब होता है कि जिस क्षण, पहले सुनो एक बार, जिस क्षण आपको ये समझ में आ जाए कि भगवान मैं पापी हूँ, मैं नरती हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर रखी हैं लाइफ में, पिछली लाइफ में, करोड़ों लाइफ में, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, लेकिन मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आज आपको सरेंडर करता हूँ। भगवान कहता है उसी क्षण में तुम्हारे सारे पिछले पाप माफ़ कर दूंगा, लेकिन अब मत करना, पिछले 1 सेकंड में सारे माफ़ कर दूंगा, अब मत करना। लेकिन ना भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लास को ख़त्म करूँगा एक कहानी सुनाकर। कहानी तो ज़रूरी होती है ना। एक बार क्या हुआ, एक मोची और एक पंडित को नारद मुनि जी मिले। अब नारद मुनि जी ने कहा पंडित जी से, और पंडित जी कैसा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, सुबह शाम भगवान का नाम, और कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया है, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो नारद मुनि को तो सब जानते ही, उन्होंने बोला कि भाई आप भगवान से तो मिलते ही रहते हो। नारद मुनि का हाँ मिलता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इस बार मिलोगे तो आप पूछ लेना कि उनको बोलना एक पंडित जी मिले थे और अपना नाम भी बताया, और बताना कि मैं क्या कर रहा था। मैं भगवान की सेवा कर रहा था, मैं तो सुबह से ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं भोग लगाता हूँ, मैं दुनिया का भला करता हूँ, दया करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और उनको बोला आप बताओ कि मेरे को दर्शन कब होएंगे। नारद मुनि कहते हैं अच्छा पूछ लूँगा। और आगे एक मोची मिलता है। अब वो मोची क्या करता है, क्या आउट ऑफ रीच हो गया क्या? तो चले सरी कट गया। तो मोची क्या कहता है, नारद मुनि को देखता है, दंडवत प्रणाम करता है। पंडित ने नहीं किया, उसको लगता है मैं पंडित हूँ, मैं तो बड़ा बन गया। मोची दंडवत प्रणाम करता है, नारद मुनि को स्थान देता है बैठने के लिए। कह रहे भगवान आप, मेरी किस्मत अच्छी है, आपके दर्शन हो गए, ऐसे बोलते हैं। तो नारद मुनि खुद बोलते हैं कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, कुछ पूछना है तुमने? तो हाथ जोड़ता है, कह रहे नहीं भगवान की दया है वैसे तो सब कुछ, बट फिर भी आप पूछ लेना कि मेरे को भगवान के दर्शन कब होंगे। बाकी मेरी तो योग्यता नहीं है, मैं तो मोची हूँ, निम्न जाति का काम करता हूँ। मांस के होता है ना, मांस से ही तो बनता है लेदर वेदर, है ना। तो मैं तो बहुत मतलब नीच जाति का हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। बट मैं चाह के भी किसी का करता नहीं हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, जो भी जैसे भी। तो बड़ा ही विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है। तो कह रहे ठीक है। भगवान जाते हैं, ओ नारद मुनि जब भगवान से मिलने जाते हैं तो कहते भाई कहाँ घूम के आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं नीचे एक पंडित जी के पास गया था, तो पूछ रहे थे कि भाई वो कब मिलेंगे, और मोची भी यही बोल रहा था कि कब मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं अच्छा नीचे जाओ, उनको जाके बोलना कि ना मैं सुई में से हाथी निकाल रहा था। सुई के अंदर से हाथी निकाल। अरे कैसे? सुई में से बोतल नहीं निकल सकती, ढक्कन नहीं निकल सकता, हाथी कहाँ से निकले? नारद मुनि कन्फ्यूज, कह रहे आप निकाल तो रहे नहीं हो पहली बात, और मैं बोल देता हूँ आप बोल रहे हो, तो मैं तो आपका भक्त हूँ, जो बोलोगे मैं, और आप निकाल भी सकते हो। तो पंडित के पास गए। पंडित कहते हाँ अभी नारद जी हुआ है? कह रहे हाँ। कह रहे मिले थे भगवान जी? कह रहे हाँ जी। कह रहे क्या बोला, कब मिलूँगा? मतलब जल्दी मिलूँगा। कह रहे वो कह रहे थे कि, कह रहे लेकिन भगवान ने साथ में उनको ये भी बोलते नारद मुनि को कि पंडित को बोलना कि तेरे को करोड़ों जन्म लगेंगे मेरे को मिलने में। तो कह रहे पूछ के आए आंसर? पंडित जी पूछते हैं। कह रहे हाँ मैंने पूछा था, भगवान कह रहे थे करोड़ों जन्म लगेंगे। कह रहे हो किसके बारे में पूछा तुमने? मेरे बारे में पूछा है? कह रहे हाँ आपके बारे में पूछा है, करोड़ों जन्म। कह रहे मैं सुबह से लेकर रात तक यही तो करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, फिर करोड़ों जन्म क्यों लगेंगे? कह रहे भगवान ने, कह रहे आप भगवान से मिल के आए हो या किसी और से मिल के आए हो? कह रहे मैं भगवान से मिल के आ रहा हूँ। कह रहे अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे? कह रहे भगवान सुई की नोक से क्या कर रहे थे? हाथी को निकाल रहे। कह रहे जाओ आगे चले गए, मैं ही मिलूँ सुबह सुबह, मुझे बेवकूफ़ पता नहीं किसका सुबह से क्या कर गया।
सुई की नोक से हाथी की पूंछ नहीं निकल सकती, हाथ ही निकल, वो भेज देते हैं। फिर मोची के पास जाते हैं, मोची फिर दंडवत करता है, फिर कहते हैं कि भगवान, वो ये नहीं पूछते क्या हुआ मेरा क्या, बैठते हैं आदर सत्कार से बिठाते हैं, कह रहे आप भगवान से मिल गए, कह रहे हाँ, कह रहे बताओ क्या कर रहे थे भगवान, मतलब वो उनकी लीला सुनना चाह रहे थे, अपने बारे में कुछ नहीं पूछते। कह रहे वो सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। वो मोची जब ये सुनता है नाचने लग जाता है। वो कह रहे क्या हुआ तेरे को, कह रहे इसीलिए तो वो भगवान है, वो एक बीज से बरगद का पेड़ निकाल सकते हैं, एक बीज से छोटे से वो बरगद का पेड़ निकाल सकते, तो हाथी सुई से हाथी को नहीं निकाल सकते, कितना मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि भैया तू इसी धाम इसी जन्म में मिलेगा भगवान। तो जब हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारे को लगता है हरे कृष्णा बोलने से क्या होगा, सब कुछ इसी से होगा। करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर क्षण काम करते तो बोलो, टॉयलेट में बैठे तो बोलो, नहाते हुए तो बोलो, प्रॉब्लम कहाँ है। हम लेक्चर सुन रहे थे उस दिन, एक प्रोग्राम चल रहा था निर्जला एकादशी वाले दिन, तो इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट एस मुरली कृष्ण जी लेक्चर ले रहे थे। तो उन्होंने बोला, गंगा जी के ऊपर बोला कि अगर घर के अंदर कोई नहा रहा है, कोई गंगा जल डाल रहा है और किसी के पास गंगा जल भी नहीं है, और वो नहाने से पहले जोर से बोलते हैं ना गंगा गंगा जोर से, तो वो गंगा है, गंगा का फल मिल जाएगा। तो नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन हम मानेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे 24 घंटे भगवान का नाम क्यों लें। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि मैं नहीं लेता ये नाम हरे कृष्णा, मेरे को जो पसंद है मैं वो ले लेता हूँ, मेरे को जो पसंद है मैं वो ले लेता हूँ। कह रहे आपको क्या पसंद है, कह रहे पेप्सी कोक, कह रहे ठीक है ले, कह रहे पेप्सी कोक। 2 मिनट के बाद थक गया, कह रहा हो लिया। हम यहाँ पे कितने सालों से ले रहे हैं हरे कृष्णा, लेकिन हम नहीं थे। तो आपको क्या करना है, जो लोग माला नहीं करते उनको माला करनी चाहिए, एक माला कम से कम स्टार्ट करनी चाहिए, और धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाते हुए धीरे धीरे जो खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं, कोशिश करें। और संडे के संडे 4 बजे का टाइम है, आप सब लोग लेट कर देते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कीर्तन होता है, वो मिस हो जाता है, वो आना चाहिए। कोई परिस्थिति ख़राब है तो बात की बात है, टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम 4:15 तक शुरू कर सकते हैं। यस, गति नहीं है। जिन्होंने भी इस्कॉन ज्वाइन कर लिया ना, उनका पहले दिन ही गुरु हो जाते हैं प्रभुपाद जी। तो जब तक आपके ऑफिशियली गुरु नहीं बनते, तब तक आप 100% प्रभुपाद जी को गुरु मानो। और इतने में भी हमारी लाइफ निपट गई ना, सपोज मृत्यु तो कभी भी, तो हमारी गुरु हैं, आप मन से मानो। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरे प्रभुपाद जी मेरे गुरु हैं और वो मुझे दीक्षा गुरु तक पहुंचाएंगे। मेरा काम क्या है, 16 माला का नियमित जाप, 4 नियमों का पालन, भगवत गीता पढ़ना, क्लास में आना संडे के संडे, मेरे गुरु धारण हो गया। अब प्रभुपाद जी ने मर्सी करेंगे, आपको गुरु मिलेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग द क्लास। हरे कृष्णा।